Here we start with lesson number 1, rational and irrational numbers. About rational numbers we have learned some of the things in standard 7. Okay, what things we have learned in standard 7, even in the previous classes also, that all those things we will revise now in this latest recall activity. We are familiar with natural numbers. Now these natural numbers, whole numbers we have learned in standard 4th, 5th, even 6th standard. Integers, this we have learned in standard 6. Rational numbers we have revised in standard 7. Okay, what are the natural numbers? Natural numbers, they are also called as counting numbers, means 1, 2, 3, 4 and so on, unlimited. They are called as natural numbers. यानी जो नंबर का यूज करके हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह कुछ काउंट करते हैं, जीरो से तो काउंट नहीं करते, 1 से काउंट करते हैं. So they are also called as counting numbers. Okay, and the perfect name for them is natural numbers. Okay, then when zero gets added in natural number के साथ जब जीरो जुड़ जाता है, when zero gets added in the natural number, then that group is called as whole numbers. जब जीरो ऐड होता है तो then it is called as whole numbers. Okay. Now all these are positive numbers. When negative numbers also get added with whole numbers, okay, that group is called as integers. What are integers? Integers means all positive numbers, all negative numbers, including zero, are called as integers. In सबको क्या बोलते हैं? Integers. Then even we have also seen some of the points regarding rational numbers. What is mean by rational number? Rational number means the number which is written in numerator denominator form, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है. ओके, तो वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, कैसे भी हो. ओके, देन दे आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स. कंडीशन क्या है कि वो फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए. ओके, हियर एग्जांपल्स आर गिवन नाउ. -25/3, 10/-7, -4. Now doubt may be there in your mind, why -4? -4 is not written in fraction form. Then how it is called as rational number? इसको rational number कैसे बोल सकते हैं? तो कौन सा भी नंबर होता है तो उसको एक डिनोमिनेटर होता है. Okay, suppose -4 is there, means what is the denominator of -4? That is 1. So this we have written in numerator denominator form. So it is called as a rational number. Okay, 0 is also a rational number. 0 का भी डिनोमिनेटर होता है. ओके, 0 का डिनोमिनेटर हो सकता है ना, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है. ओके, इवन 3 also can be written in numerator denominator form. 8 is there, 8 can be written in numerator denominator form. Okay, 8/1. Alright, so 32/3, 67/5, etc. all such. Means what is mean by rational number? और rational numbers किसको बोलते हैं? जो numbers numerator denominator form में लिखे जाते हैं, they are called as rational numbers. The meaning is explained here. Rational numbers, the numbers of the form m/n. Okay, m का मतलब क्या है? कौन सा भी न्यूमरेटर, n का मतलब कौन सा भी डिनोमिनेटर. ओके, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन दी है. ओके, n के लिए कंडीशन है. Okay, that condition we will see on the next line. Okay, the numbers of the form m/m. Okay, जो m/n फॉर्म में लिखा जाता है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा जाता है. Okay, are called rational numbers. उनको क्या बोला जाता है? rational numbers. Here m and n are integers. Okay, मैंने बोला था कौन सा भी नंबर यानी क्या है, पॉजिटिव नंबर चलेगा, निगेटिव नंबर चलेगा, कैसे भी नंबर चलेगा. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली वन वर्ड इज यूज हियर. व्हाट? इंटेजर्स. यानी वो इंटेजर होना चाहिए. इंटेजर का मतलब क्या है कि पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, जीरो भी चलता है. ओके, इंटेजर में आता है जीरो. ओके, बट नाउ हियर कंडीशन इज गिवन, बट n is not 0. This is the only condition. n is not 0 means what? Here n is placed at डिनोमिनेटर प्लेस. ओके, सिर्फ डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. न्यूमरेटर जीरो चलेगा लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं चलेगा. ओके, अगर ऐसा है then such a fraction is called as rational number.
Let us move ahead. We have also seen that there are infinite rational numbers between any two rational numbers. In 7th standard, we have learned how to find the numbers between given two numbers. Okay, कौन से भी दो नंबर दिए तो वो दो नंबर के बीच में कितने नंबर्स हैं वो कैसे फाइंड आउट करना है, यानी दोनों का एडिशन करना है, उनको 2 से डिवाइड करना है. ओके, दैट वी हैव लर्न इन स्टैंडर्ड 7 एंड देयर ओनली वी हैव आल्सो लर्न दैट देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स. कितने भी निकाल सकते हैं. सपोज 7 और 8, सपोज ये दोनों रैशनल नंबर से. ओके, 7 और 8 के बीच में कितने नंबर है, हम लोग सोचेंगे 7 के बाद 8 आता है, वो दोनों के बीच में तो कोई नंबर नहीं है. ओके, लेकिन जब उनको एक्सपांड किया जाता है, ओके, देन वी कैन राइट lakhs crores ऑफ नंबर्स इन बिटवीन 7 एंड 8. ओके, तो कितने भी नंबर लिख सकते हैं. लेट अस मूव अहेड. लेट अस लर्न नाउ हाउ टू शो रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. ओके, तो ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या है, यानी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए फ्रैक्शन का, उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर. तो हाउ टू शो, यहां पर मैं ऐसा भी एक सेंटेंस यूज करता हूं, टू शो फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन. ना ये फ्रैक्शन दिखाना तो हमने पढ़ा है 6th स्टैंडर्ड. इन 6th स्टैंडर्ड ओनली वी हैव लर्न. इज इट करेक्ट? ये सिर्फ रिवीजन है. ओके, तो फ्रैक्शन कैसे दिखा सकते हैं नंबर लाइन पर, ये तो हम लोगों को आता है. तो बस फ्रैक्शन मतलब रैशनल नंबर. ओके, सिर्फ थोड़ा सा चेंज क्या है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस क्या है कि रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. ओके, तो फ्रैक्शन में चलता है 0 डिनोमिनेटर की जगह पर. ओके, लेट अस सी हाउ टू शो 7/3 to -2/3 ऑन अ नंबर लाइन. ओके, इसके लिए फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शन दिखाना होता है नंबर लाइन पर, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, जो डिनोमिनेटर होता है. ओके, यहां पर डिनोमिनेटर क्या है, 3. ओके, तो जब 3 डिनोमिनेटर है तो उसके लिए एक जो यूनिट होता है, एक यूनिट, ये एक यूनिट है 0 से लेकर 1 तक, इसको बोलते हैं एक यूनिट. 1 से लेकर 2 तक दूसरा यूनिट हो गया. ओके, तो ये एक यूनिट कितने पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, 3 पार्ट्स में. देखो 1 2 3. ओके, देन ओनली वी कैन शो द फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर 3 ऑन द नंबर लाइन. राइट, 7/3 नहीं तो -2/3. ओके, अगर ये फ्रैक्शन अगर नंबर लाइन पर दिखाने हैं तो एक यूनिट कितने पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, 3 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए. जितना डिनोमिनेटर उतने पार्ट में ये यूनिट डिवाइड होता है. ओके, नाउ लेट अस ड्रॉ नंबर लाइन. यहां पर ईयर नंबर लाइन इज ड्रॉन. ओके, नाउ ईयर 0 1 2 3 4 and you see all units are divided into 3 parts. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Here also you see left side, यानी जहां पर निगेटिव नंबर चालू होते हैं. देखो 1 2 3 -1 1 2 3 -2 1 2 3 -3. वैसे 1 2 3 यहां पर -4 1 2 3 -5 इधर आएगा. ओके, सो जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नहीं तो रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट्स में एक यूनिट डिवाइड करना होता है. ओके, एंड देन वी कैन शो द रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, 7/3. ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये पहला चेक करना है. अगर पॉजिटिव है तो वो 0 की राइट साइड में जाएगा. निगेटिव है, अगर उसका न्यूमरेटर निगेटिव है तो वो लेफ्ट साइड में जाता है. राइट, तो 7/3 0 के बाद क्या आता है. अब ये देखो ये एक यूनिट कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, 3 पार्ट में. यानी ये पहला पार्ट है कितने पार्ट का, 3 पार्ट. ओके, 1/3. इसका क्या आता है, 2/3. ये इसका जो व्हाट इज द प्लेस, 3/3. यानी 3 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स आंसर 1. दिस इज 4/3 5/3 6/3. ये देखो 6/3 दोनों का डिवीजन किया तो आंसर 2.
7/3, 8/3, 9/3, तो हमें दिखाना है 7/3, तो ये 7/3 का आता है, ये 6/3 के बाद 7/3, सो दिस इज 7/3. In this way, the rational numbers are shown on the number line. Then number 2, okay, तो 2 मतलब 2/1, रैशनल नंबर की लैंग्वेज में अगर सोचना है तो 2 means 2/1. Okay, तो 2 how it is shown? It is positive, so here 1 and this 2. Okay, उसके लिए तो डिनोमिनेटर सोचने की जरूरत नहीं है. Then -2/3, -2/3 तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा, निगेटिव नंबर है, न्यूमरेटर निगेटिव है. ओके, हियर व्हाट इज द प्लेस? -1/3, -2/3, बस ये जैसे नंबर जाते हैं वैसे इसके उल्टे लेके, उल्टे यानी अपोजिट नंबर्स यानी नेगेटिव नंबर्स. -1/3, -2/3, दिस इज द प्लेस. दिस इज -3/3 मीन्स -1, -4/3, -5/3, -6/3, -7/3. ओके, जो डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट में एक यूनिट डिवाइड करना है. राइट, आई होप इट इज क्लियर नाउ. लेट अस मूव अहेड. वी कैन शो द नंबर 2 ऑन द नंबर लाइन. हियर वी हैव शोन. देन 7/3 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 1/3. ओके, यानी 1/3 की कितने पार्ट्स? 7 पार्ट्स. देखो 1/3, 1/3, 1/3 का एक एक पार्ट होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/3. ओके, तीन अगर एक यूनिट के 3 पार्ट किए हैं तो 7 ऐसे 7 पार्ट्स ले लो. वो वहां पर कौन सा फ्रैक्शन आता है? 7/3. दैट इज द मीनिंग ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, यानी 1/3 के कितने पार्ट्स? 7 पार्ट्स. Therefore, each unit on the right side of 0 is divided into 3 equal parts, which I explained. The 7th point from 0 shows 7/3, or 7/3 is equal to 2 plus 1/3. Hence, the point at 1/3 distance on unit after 2 shows 7/3. Even this 7/3 we can show it by different method also. Okay. अब इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करो. Okay, this is improper fraction. तो 7/3 यानी 7 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1. ओके, नाउ 3 से डिवाइड करने के बाद क्या क्वेश्चन मिला है? 2. तो यानी 0 के बाद 2 ले लो, 1 2. ओके, एंड 2, ये 2 होने के बाद रिमाइंडर कितना है? 1 पार्ट, एक छोटा 1 पार्ट, तो यहां आ गए. ओके, दिस इज आवर 7/3. इन दिस वे ऑल्सो वी कैन रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन by converting it into mixed number. Okay, इसका आंसर क्या मिलता है? 2 integer 1/3. 2 integer 1/3. Okay, so here it is 2 integer and ये 2 integer है complete 2. Okay, integer 2 and उसके बाद 1/3 यानी उसके बाद एक पार्ट, तो यहां पर आता है. The same way, to show -2/3 on the number line, first we show 2/3 on it. Okay, where 2/3 we have shown to the right side. 0 के right side में हमने 2/3 दिखा है. Okay, the number to the left of 0 at the same distance will show the number -2/3. How it is possible? Because 2/3 and -2/3 they are the equally opposite number. Okay, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, इक्वली ऑपोजिट नंबर. तो 0 से ये जितना राइट साइड में जाएगा उतना ही 0 से ये लेफ्ट साइड में जाएगा. Okay, उतने पॉइंट्स से, by that many steps or by that many points we can say. Right? Now let us move to practice set number 1.1. What is question number 1? Show the following numbers on a number line. Draw a separate number line for each example. Here 4 examples are shown. For these 4 examples we have to draw separate 4 number lines and we have to show. Okay. But before going to that, I want to explain. Now suppose when we draw a number line for showing these 3 numbers, तो इसमें एक यूनिट कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? 2 पार्ट में डिवाइड होगा. Why? Because the denominator is 2. यहां पर एक यूनिट कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 5 यूनिट्स. यहां पर एक यूनिट 8 यूनिट्स में. यहां पर 1 unit will get divided into 10 parts. Here 1 unit into 2 parts, here 1 unit into 5 parts, here 1 unit into 8 parts, here 1 unit into 10 parts. 1 unit यानी 0 से
1 तक का डिस्टेंस, 1 से 2 तक का डिस्टेंस, 2 से लेकर 3 तक का डिस्टेंस, ओके, ये उतने पार्ट्स में डिवाइड होगा, देन ओनली वी विल बी एबल टू शो दीज फ्रैक्शंस ऑन दैट नंबर लाइन. Okay, let us see practically now. Now let us see. Here I have drawn a number line. Here in the center I have taken point 0. Okay. Here to the right side I will say it is 1, means positive numbers to the right side. Here 2, here 3. Here -1, here -2, here -3. Okay, normally we know this number line. Now, for representing these rational numbers on the number line, okay, first observe the denominator. पहले इसका denominator observe करो. Okay, क्या है denominator? 2. तो ये एक यूनिट कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 2 पार्ट्स. तो देखो हो गया 2 पार्ट्स में डिवाइड, 1 2. इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, थोड़ा सा इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसको 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स, राइट. देन ओनली वी विल बी एबल टू शो दिस. ओके, अब थोड़ा सा ओरली का इसका वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. 0 के बाद यह 1 है. ओके, 1 ये दोनों का अगर आधा आधा किया है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1/2. इसकी वैल्यू क्या हो गई? 2/2. ओके, 2/2 मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 1. ओके, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 3/2. इसकी वैल्यू हो गई 4/2. दिस इज 5/2. दिस इज 6/2. राइट. द सेम वे how these positive numbers are written, the same way opposite in the opposite direction same opposite numbers are written. Okay, अब from 0 to -1, 0 से -1 तक, ओके, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है. ओके, तो 1 -1 कितने पार्ट में डिवाइड किया है हमने? 2 पार्ट में, -1/2. ओके, here -2/2. here you will get -3/2. here you will get -4/2. ओके, इन दोनों का डिवीजन करके देखो आंसर मिलेगा -1. इन दोनों का डिवीजन करके देखो आंसर मिलेगा -2. ओके, here you will get -5/2. here -6/2. right. Okay, this is all a general explanation. Okay, now think of these three numbers. ओके, ये अब तक जो एक्सप्लेन किया वो आप लोगों को नंबर लाइन समझने के लिए. ओके, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? 3/2. ओके, तो 3/2, here 1/2, 2/2, 3/2. Okay, here is our 3/2. Right. Then 5/2. Start again. 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2. Here is our 5. Here our rational number 5/2 can be written. Then -3/2. पहले देखो नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर 0 के लेफ्ट साइड में जाएगा. -1/2, -2/2, -3/2. That's right. This is all about the first example. Then let us move to second example. Let us see second example. Now here rational numbers are given 7/5, -2/5, -4/5. 3 numbers are given. First observe the denominators. What are the denominators? 5, 5, 5. Okay, means one unit should get divided into how many parts? 5 parts. देखो, तो 0 से 1 तक का जो डिस्टेंस है वो कितने पार्ट में मैंने डिवाइड किया है? देखो 1 2 3 4 5. आगे का यूनिट देखो 1 2 3 4 5. ओके, द सेम वे सी हियर दिस साइड 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. ओके, हर एक यूनिट कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 5 पार्ट्स में. देन ओनली वी कैन शो दिस फ्रैक्शंस. ओके, नाउ लेट अस सी 7/5. तो 7/5 यानी यहां पर 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, here 7/5. This point shows the fraction 7/5. Right?
देन सेकेंड नंबर -2/5. तो यहां पर पहला सॉरी 0 के इस साइड में पहला क्या है -1/5. यहां पर क्या आएगा -2/5. ओके, ऐसे ही कंटिन्यू करो. -3/5, -4/5. Here the rational number -4/5 comes. And this is -5/5. Division करो -1 आंसर आता है. Okay, so these are our 3 rational numbers. Let us see example number 3. 2 rational numbers are given -5/8, 11/8. Right? Now, for drawing the number line, first we have to divide every unit into how many parts? 8 parts. ओके, तो 0 से लेकर 1 तक का जो डिस्टेंस है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए? 8 पार्ट. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. द सेम वे टू द लेफ्ट साइड ऑल्सो 1 2 3 4 5 6 7 8. उसके बाद भी 1 2 3 4 5 6 7 8. And then here what will come? -2 will come here because here the place is -1. Right? In this way first we have to draw the number line. तो पहला कौन सा रैशनल नंबर दिखाना है? -5/8. तो दिखाते हैं 0 से. अब ये निगेटिव नंबर है तो लेफ्ट साइड में जाएगा. ओके, तो -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8. Here our -5/8 rational number comes. Alright, 11/8. It is a positive number. पॉजिटिव रैशनल नंबर इट इज. ओके, तो राइट साइड में जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. राइट, हियर इज 11/8. लेट अस सी एग्जांपल नंबर 4. Here rational numbers are given 13/10 -17/10. Okay, here already I have drawn a number line. Okay, which I have divided into equal parts. Okay, but I did not fix the point. Now, before fixing the point means 1 2 3. Okay, what we have to think? We have to think that denominator is 10. Means after 10 small points, the one unit will get over. So from 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Here what will come? 1. Right? The same way to the left side, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Here what will come? -1. Then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Here what number will come? -2. Alright? Okay. Now think of plotting these numbers on the number line. 13/10. इट्स अ पॉजिटिव नंबर. राइट साइड में जाएगा. 0 से कितने पार्ट्स? 13. ओके, सो 1 2, तो यहां तक कितने हो गए? 10. ये तो मालूम है हम लोगों को. 10 11 12 13. सो व्हाट नंबर कम्स हियर? 13/10. राइट, देन ये -17/10. इट इज नेगेटिव नंबर. ओके, तो यहां तक कितने हो गए? -1 यानी -10/10. -11, -12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay, here what number will come? -17/10. Right? Now let us move to example number 2. See question number 2. Observe the number line and answer the questions. Here number line is there. First thing is observe the number line carefully. पहले 0 पॉइंट करना है. ओके, 0 से 1 2 3 -1 -2 -3. ओके, पहला क्या काउंट करना है? 0 से 1 तक ये एक यूनिट कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 1 2 3 4. ओके, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. राइट, ये 1 से लेकर 2 तक 1 2 3 4, यानी एवरी यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. Okay, here letters are given. Here A, B, E, O, F, C and D. Okay, now let us see the questions.
विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी. ओके, तो ये बी पॉइंट कौन सा नंबर इंडिकेट करता है. ओके, तो 0 से काउंट करते हैं. -1 अपॉन ये एक पार्ट कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक यूनिट कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, 1 2 3 4 4 पार्ट में. सो दिस इज -1 अपॉन 4, -2 अपॉन 4, -3 अपॉन 4, -4 अपॉन 4. ओके, सो -5, -6, -7, -8, -9, -10. ओके, सो it shows -10 and every unit is divided into 4 parts. So the point B indicates the rational number -10 upon 4. Then second question, which point indicates the number 1 integer 3 upon 4? Okay, अब इसके दो तरीके हैं. ओके, 1 इंटेजर का मतलब क्या है, 0 से 1 तक ये हो गया 1 इंटेजर, उसके बाद 3 अपॉन 4. ओके, एक ऐसा भी सोच सकते हैं. दूसरा क्या सोचना है, कन्वर्ट दिस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 4 1 जा 4 प्लस 3 7, सो 7 अपॉन 4. ओके, तो ऐसा भी सोचो. 1 इंटेजर 3 अपॉन 4 का मतलब क्या है, 7 अपॉन 4. ये 7 अपॉन 4 का आएगा पॉजिटिव नंबर. देखो 1 2 3 4 5 6 7, राइट. यहां पर क्या आएगा, 7 अपॉन 4. ओके, बाय इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब इसका सोचते हैं, 1 इंटेजर 3 अपॉन 4, एक की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 4. इस यहां से यहां तक वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 4. यहां से यहां तक होती है 2 अपॉन 4, यहां से यहां तक होती है 1 अपॉन 4. ओके, तो यहां से यहां तक फ्रॉम O टू F इट हैज कंप्लीटेड 1 इंटेजर. तो एक इंटेजर यहां तक पूरा हो गया. उसके बाद कितने पार्ट लेने हैं, 3 पार्ट लेने हैं. F के बाद 1 2 3 आ गया, यानी 1 इंटेजर और उसके बाद 3 अपॉन 4. देन मीन्स इट मेक्स 7 अपॉन 4. राइट. देन लेट अस मूव टू थर्ड क्वेश्चन. इट इज ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन. स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट D डिनोट्स द नंबर 5 अपॉन 2. ओके, एक स्टेटमेंट दिया है. क्या स्टेटमेंट है, द पॉइंट D डिनोट्स द नंबर 5 अपॉन 2. इज ट्रू और फॉल्स. ये जो पॉइंट D है ये क्या दिखाता है, 5 अपॉन 2. ये ट्रू है या फॉल्स है. अब देखो, अगर 5 अपॉन 2 है, मैंने तो पहले एक्सप्लेन किया था कि अगर 5 अपॉन 2 दिखाना है तो एक यूनिट कितने पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, 2 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए. लेकिन यहां पर एक पार्ट तो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है. ओके, तो दिखा सकते हैं कि 5 अपॉन 2 दिखा सकते हैं. ओके, कैसे दिखा सकते हैं, तो ऐसा कंसीडर करो कि 0 से 1 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है. अब देखो कैसे, 1 2 हो गए 2 पार्ट, आ गया इधर 1, उसके बाद 1 2 1 2. ओके, देखो यहां पर 1 यहां पर 2. ओके, अब अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन 5 अपॉन 2 का आता है. देखो 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 यानी 1, 3 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 मीन्स 2, 5 upon 2 यानी D. Okay, so the point denotes 5 upon 2. It is true. It is true. What is the reason? State whether the statement point D denotes the number 5 upon 2 is true or false. Only true or false is asked. So the statement is true. Okay, here our practice set number 1.1 gets over. Okay, I will come with the new video with the next point, that is comparison of rational numbers.